بندوقوں، توپوں، ٹینکوں، میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کو پیجر اٹیک کا نشانہ بنا دیا۔ حزب اللہ کے ارکان، حامیوں اور ان کے گھر والوں کے زیر استعمال ہزاروں پیجر ڈیوائسز ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئیں۔ لبنان میں ایرانی سفیر مجتبی امانی سمیت 3000 کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ ایک بچی سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ تقریباً 200 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ محفوظ رہے۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے پیجر دھماکے اسرائیل کی جانب سے ڈیوائسز ہیک کیے جانے کے بعد ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق پیجر ڈیوائسز پہلے انتہائی گرم ہوئیں، پھر دھماکے سے پھٹ گئیں۔ ترجمان حزب اللہ نے دھماکوں کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ناکامی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس جارحیت کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ان حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ چند ماہ پہلے اپنے حامیوں کو موبائل فون کا استعمال چھوڑنے کا کہہ چکے تھے، جس کے بعد بیشتر حزب اللہ ارکان، حامی اور ان کے اہل خانہ نئے ماڈل کے جدید پیجر ڈیوائس استعمال کر رہے تھے۔ لبنانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دھماکے اسرائیل کی خطرناک اور جان بوجھ کر کی گئی اشتعال انگیزی ہے۔ مغربی خبررساں ایجنسی نے کہا ہے کہ لبنان نے پیجر چند ماہ پہلے تائیوان سے خریدے تھے۔ سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پیجرز میں لبنان پہنچنے سے پہلے دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ حزب اللہ تک پہنچنے سے پہلے پیجرز میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ پیجرز پر نئے پیغام کا سگنل آنے کے چند سیکنڈ کے بعد ایک ساتھ دھماکے ہوئے۔ پیجرز تائیوان سے براہ راست لبنان پہنچے یا کسی تیسرے ملک سے لبنان درآمد کیے گئے۔ لبنان میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بندوقوں، توپوں، ٹینکوں، میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کو پیجر اٹیک کا نشانہ بنایا ہے۔ مغربی خبررساں ایجنسی نے کہا ہے کہ لبنان نے پیجر چند ماہ پہلے تائیوان سے خریدے تھے۔ سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پیجرز میں لبنان پہنچنے سے پہلے دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ حزب اللہ تک پہنچنے سے پہلے پیجرز میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ پیجرز پر نئے پیغام کا سگنل آنے کے چند سیکنڈ کے بعد ایک ساتھ دھماکے ہوئے۔ پیجرز تائیوان سے براہ راست لبنان پہنچے تھے یا پھر کسی تیسرے ملک سے لبنان درآمد کیے گئے تھے۔ لبنان میں اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شام میں بھی حزب اللہ کے کارکنوں کی پیجر ڈیوائسز میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ شامی مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ ان پیجر دھماکوں میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے دارالحکومت دمشق اور دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز میں ہوئے ہیں۔ ایران نے لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں کو شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے لبنانی ہم منصب سے رابطہ کیا، کہا کہ لبنان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ لبنان میں ایرانی سفیر کو فوری طبی امداد فراہم کرنے پر لبنان کے شکر گزار ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں کو اسرائیلی جارحیت کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ پیجر دھماکوں سے بڑھنے والی کشیدگی اسرائیل کو ناکامی اور شکست کی طرف لے کر جائے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں میں ملوث نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ابھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پیجر دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھانے والا کوئی بھی اقدام امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ دھماکے غزہ جنگ بندی مذاکرات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایران عدم استحکام بڑھانے کے لیے کسی بھی واقعے کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اقوام متحدہ نے لبنان میں پیجرز ڈیوائس دھماکوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لبنان میں پیجر دھماکوں کی پیش رفت انتہائی تشویشناک ہے۔ لبنان میں غیر مستحکم حالات پیدا کرنے کی کوششوں پر تشویش ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ رکھا گیا ہے اسے بحال کیا جائے گا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے شاید حکومت کا کوئی پوائنٹ ماننا پڑے گا۔ کیپٹل ٹاک میں بتایا کہ پیپلز پارٹی اور JUIF اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک متفقہ ڈرافٹ پر اتفاق کریں۔ میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا
प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आप शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। राना साहब ने जो इतवार वाले दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भाई मुझे तो अभी तक ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, इस पे बात नहीं हुई, तो अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और ना ही इस मामले को इस तरह से हम लेना चाहते हैं कि हम ये कहें कि नहीं जी फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ सही है। उनके साथ बार बार मुलाकातें हुई हैं। आज़मज़ीद तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब वो बार बार मिलते रहे हैं। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी उन्होंने मिलाया है, फिर डार साहब शामिल हुए हैं। आखिरी एक हफ्ते में 10 तो मुलाकातें हुई हैं। उसमें कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं जानी चाहिए कि जिसके ऊपर ये बात हो कि जी ये चीज़ शेयर नहीं हुई, ये चीज़ शेयर नहीं हुई। मौलाना से जो बात हुई उसके बाद फिर इसको वो रिवाइज़ किया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई 2 दफ़ा तो रिवाइज़ हो के अब जिस शक्ल में मौजूद है, तो फिर अगर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो फिर ये रिवाइज़ कैसे होता रहा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है कि इनको अगर हम ज़्यादा डिटेल या बारीकी में जाके करेंगे तो वो फिर किसी की नाराज़गी का बायस बनेंगे। दरगुजर से जो है वो काम लेते हुए इसमें मुशावरत का अमल जो है इसको मज़ीद बेहतर और वसी करते हुए वो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई होगी। आखिरी दिन तक मैं तो ये कहता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर नहीं है। मौलाना हमारे साथ होंगे तो फिर नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा और बल्कि बड़ा क्लोज होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई शक नहीं कि 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। कौन सी दुनिया में अदालत कहती है टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त करेंगे? दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है? ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा? इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि आईनी तरामीम की मंजूरी तो दूर की बात, किसी को ये तरामीम पेश करने की जुर्रत तक नहीं होगी। मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने PTI के दिसंबर तक राजी हो जाने की ख्वाजा आसिफ के दावों को मुस्तरद कर दिया था। कहा था कि ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत पहले मुसव्वदा तो दिखाए, इससे पहले रजामंदी की बात करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का तर्ज़ अमल उनकी तालीमात के मुनाफी नहीं हो सकता। लाहौर में महफिल मिलाद से उन्होंने खिताब किया। ये हो नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का तर्ज़ अमल उनकी तालीमात के मुनाफी हो। हमें ज़िंदगी के हर शोबे में इस अमर का ख्याल रखना होगा कि दुनिया की दीगर अक़वाम के लिए हमारा तर्ज़ अमल क्या, उस मेयार के मुताबिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर और पसंद फरमाया है उसके मुताबिक है। आज की इस बाबरकत महफिल में हम सबसे लोग ये तकाज़ा कर रहे हैं और मेरी आप सबसे अपील है कि माशरे में गालम गलोच के रुझान की इस्लाह में
अपना भरपूर किरदार अदा करें, बद कलामी इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों की जानिब से रैलियां और जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी शरीक हुए। मरकजी जलसा निश्तर पार्क में हुआ, जिससे सरबराह जमात अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक कादरी, अलामा कौकब नौरानी और काड़वी और हाजी हनीफ तैयब समेत सरवत एजाज कादरी और दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। अमरीका मौलिक हथियार के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क्स की खिलाफ कार्रवाई करके बैनुल-अक़वामी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, अपने खदशात के बारे में वाज़े और मुस्तकिल हैं। हम अपनी पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी कौमी सलामती मुतासर न हो सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भारत, गज़ा, म्यांमार में मज़ालिम का शिकार मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि अगर हम भारत, गज़ा, म्यांमार और दीगर मुल्कों में मुसलमानों के मसाइब से गाफिल हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं। अपने बयान में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा कि इस्लाम दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम उम्मा में तफर्रुका डालने की कोशिश की है। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के इस बयान पर भारत बरहम हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अली ख़ामेनी का बयान गलत मालूमात पर मबनी और नाकाबिले कबूल है। दूसरे मुल्कों में अक़लियतों से सुलूक पर बात करने वाले ममालिक खुद अपना रिकॉर्ड देखें। मेयर कराची और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की टीम अपने ड्राफ्ट पर काम कर रही है और हम अपने ड्राफ्ट पर। बिलावल भुट्टो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जिस पर सबका इत्तफाक हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए किया। जो आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उसमें पूरा मैंडेट दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आप फिर जो कंसेंसस डेवलप करें उस पर हुकूमत राज़ी होगी? बिलावल साहब जो हैं वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर कि सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो वो नून लीग के साथ भी बात कर रहे हैं और वो मौलाना साहब से भी बात कर रहे हैं। मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आपका जो ड्राफ्ट है आप लेकर आइए, हम अपना ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेंगे और अगर हम दोनों के दरमियान कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो हम उसी ड्राफ्ट को फिर हुकूमत के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हुकूमत को कायल करें या हुकूमत से कायल हो। बलूचिस्तान में शिरानी के पहाड़ी सिलसिले के जंगल में आग लग गई। पीडीएमए का कहना है कि जंगल में चलगोजे के दरख्त पाए जाते हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर से। शाह बताएगा आग बुझाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, ये शिरानी शहर से काफी फासले पर वाक़ पहाड़ी सिलसिला है कि सागर वहाँ के जंगल में आग लगी है और जंगल में चलगोजे के दरख्त भी पाए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर शिरानी सना माजवीन शिरानी के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलने के बाद ज़िला इंतज़ामिया, लेडीज फोर्स और महकमा जंगलात की टीमें करीब तक तो पहुँच गई हैं। ताहम दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से गाड़ियाँ उस मकाम तक नहीं पहुँच सकती हैं। आग कभी बुझ जाती है और जब हवा तेज हो जाती है तो दोबारा आग भड़क उठती है। बहरहाल उनके मुताबिक जो टीमें हैं वो करीब तक मौजूद हैं और आग लगने की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है ताकि उसके मुताबिक मजीद कार्रवाई की जा सके। जी ठीक, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और गंदा पानी जमा होने से शहरियों को बीमारियों और हादसात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पंजाब के ऐलानात के बावजूद लाहौर जैसे शहर की कई अहम सड़कों की हालत इस कदर अबतर है तो पसमानदा और दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा? देखते हैं लाहौर से हिरा बतूल की रिपोर्ट। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने के बाद ऐलान किया था कि 1 माह के अंदर पंजाब की किसी सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आएगा। ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। हमजा शहबाज के हलके में भी कई सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं जिनमें गंदा पानी भी खड़ा है। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान की इमारत के सामने और दूसरी जगहों पर भी कई माह से गड्ढे पड़े हैं। इससे मुल्हका सड़क पर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह को जाने वाली एक दरवाजे के सामने भी गड्ढे पड़े हैं जिनमें गंदा पानी खड़ा है। यहाँ राहगीरों को सख्त दुश्वारी का सामना है और पुलिस एहलकार भी बीमार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खराब सड़क के बाइस आए रोज हादसा भी होते हैं। इस रोड पे बहुत
بہت زیادہ کھٹے ہیں, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جب سامان لے کے لوڈ لے کے جاتے ہیں کسی چیز کا بھی, کوئی چھوٹی موٹی, تو اتنی زور سے لگتا ہے. یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں, جو ٹھنڈی سڑک انہیں ہم کہتے ہیں, یہ اتنی کی مشہور ہے, اور یہاں پر ٹریفک بھی 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. اگر ایسے ہی کھٹے رہیں گے تو آپ صاحب لگا کہ روزانہ ایک حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے. روڈ سر بہت زیادہ خراب ہے, دیکھو کھڈے نے, پیچھے بھی جڑا ہے نا ساری روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. بہت مشکلات کا سامنا سانو کرنا پہ رہا ہے, ڈیلی اسی روڈ تو گزرتے ہیں, موٹر سائیکل پنچر ہو رہی ہے. لاہور کی ایک اور اہم سڑک جس کی ایک طرف ایچیسن کالج اور دوسری طرف نیو گارڈن ہے, وہاں بھی جا بجا گھڑے پڑے ہیں. رات کو شدید اندھیرا ہوتا ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس بارے میں چیف کارپوریشن آفیسر علی عباس کا کہنا ہے سڑک پر پڑے گھروں کی جیو ٹیگنگ اور سروے ہو چکا ہے, مرمت کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا. کیمرامین خواجہ عامر کے ساتھ ہیرا بطول, جیو نیوز لاہور. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہونے پر اظہار تشکر کیا ہے. ایک بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تمام صوبوں کی پولیس, انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی محنت سے شہریوں نے پرامن ماحول میں جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیں. چیف سیکرٹریز, انسپیکٹر جنرل پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے سربراہان مبارکباد کے مستحق ہیں. بہترین انتظامات پر پولیس, انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں.